ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ 2 ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਨਵਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਕਾਲਣੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਬੜਾ ਟਫ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਔਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ, ਇੱਕ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਲਾਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਇਹ ਟਫ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਾਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਸਮ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਵੱਡਾ ਆਉਂਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਾਲੋ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਵਰਸ ਲਗਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਮੰਨ ਲਓ 2x2 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਨਾ, 1 3 4 5, ਇਹ 3x3 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ 4x4 ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2x2 ਦੇ 3x3 ਮੇਨਲੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ 2x2 ਦੀ ਤੇ 3x3 ਦੀ ਤੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋ ਤੇ ਕਾਲਮ। ਜੇ 2x2 ਦੀ ਹੈ 2 ਰੋ 2 ਕਾਲਮ, ਜੇ 3x3 ਦੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਰੋ 3 ਕਾਲਮ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਤੇ ਕਾਲਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਰੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੋ R1 R2 ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਰੋ ਤੇ ਕਾਲਮ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ, 3x3 ਚਲੋ ਰੱਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋ ਹੈ, 2 ਰੋ ਤੇ 2 ਕਾਲਮ। ਇਹ ਰੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੋ ਆਪਸ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ R1 + R2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਕਾਲਮ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਲਮ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਅਗਰ 3x3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ 3x3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੋਜ਼ ਹੈ ਤੇ 3 ਹੀ ਕਾਲਮ। ਅਗਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲਮ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਲਮ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਗਰ 2x2 ਹੈ ਤੇ 2 ਰੋਜ਼, 3x3 ਹੈ ਤੇ 3 ਰੋਜ਼, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼, ਇਹ 2 ਰੋਜ਼, ਇਹ ਫਸਟ ਰੋ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਥਰਡ ਰੋ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ, ਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਾਲਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਾਲਮ ਆਪਸ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਲਮ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਲਮ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ 6 ਹੋਣੀਆਂ 3 ਰੋਜ਼ 'ਚ मतलब रो जिदा आप पढ़े रोज अपने आप से किहड़े ऑपरेशन लगांदी है वो 3 तरह के ऑपरेशन लगांदी है। रोज किन्ने तरह के ऑपरेशन लगांदी है 3 तरह के 3 तरह के रोज ऑपरेशन लगांदी है तो 3 तरह की कॉलम। ठीक है अगे आप करने हैं जब करके एलीमेंट्री ट्रांसमिशन। तो सब पहले मैट्रिक एलीमेंट्री ट्रांसमिशन की है टोटल 6 होंगी है 6 एलीमेंट्री ट्रांसमिशन होंगी है 3 रो च ते 3 कॉलम च। मतलब तुम इदा भी कह सकते हो होंगे 3 ही है अगर रो च लगा दोगे तो कॉलम च 3 ही रो च तो उन्होंने टोटल एलीमेंट्री ट्रांसमिशन कितनी होंगी 6 होंगे 3 ही है रो तो कॉलम 3 रो च 3 कॉलम च हो गए साढ़े को एलीमेंट्री ट्रांसमिशन टोटल कितनी होंगी 6 होंगे की है चाहे 2x2 की मैट्रिक्स है चाहे 3x3 की मैट्रिक्स है 4x4 की साढ़े इतने है नहीं है +2 च इस करके मैं 3x3 से कंसनट्रेट ज़्यादा करना क्योंकि 2x2 सिंपल निकल जाना 3x3 तो ही निकल जाना है। एलीमेंट्री ट्रांसमिशन पहली की कहती है इंटरचेंजिंग ऑफ रोज 2 और मोर रोज या 2 रोज आप 2 की गल करिए 2 रोज एंड 2 कॉलम्स और 2 कॉलम्स। मतलब पहला रो की गल करिए मान लो तुम मैट्रिक्स दिखती है कोई भी लिख लियो मैट्रिक्स आ गई तुम आप कोई भी 2 रो इंटरचेंज कर दी एट ए टाइम 2 रो इंटरचेंज कर दी कोई भी पहली नूं दूजी ना कर लो या दूजी नूं तीजी ना कर लो इंटरचेंज या तीजी रो नूं पहली ना इंटरचेंज कर दो तो उन्होंने आप की बोल दें एलीमेंट्री ट्रांसमिशन। ध्यान सुनना पहली एलीमेंट्री ट्रांसमिशन की है यू कैन इंटरचेंज एनी ऑफ 2 रोज रो नूं कॉलम ना नहीं कोई भी 2 रो आपस में इंटरचेंज कर सकते हो जिदा जिदा है कि अगर आप रो इंटरचेंज करांगे तो रो इंटरचेंज करके कितना होगा जिदा आप मान लो R1 नूं R3 की जगह कर दी इदा R3 की जगह R1 आ गया तो R1 की जगह इनू कहने आप इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज की हो गया एलीमेंट्री ट्रांसमिशन। मतलब जो आप किसी भी मैट्रिक्स की 2 रोआं इंटरचेंज कर दी है तो उन्होंने आप बोल दें एलीमेंट्री ट्रांसमिशन। किसी भी 2 रोज में जरूरी नहीं पहली तो तीजी। अच्छा लिखोगे कि इदा R1 इंटरचेंजिंग विद R1 इंटरचेंजिंग विद R3। ठीक है जी इतने क्लीयर नहीं होने इतने लिख देना ऐसा R1 चल गई R3 इसका मतलब होता R1 गोज टू R3 तो R3 गोज टू R1। जो भी तुम एलीमेंट्री ट्रांसमिशन करनी है उन्होंने लिखना जरूर है पहला भी किया की है ताकि पता लग जाए R1 इंटरचेंजिंग विद R3 इनू आप कहने एलीमेंट्री ट्रांसमिशन। 3 तरह की होंगी टोटल 6 होंगी 3 रोज 3 कॉलम। तुम इदा भी कर सकते हो किसी भी 2 रो इंटरचेंज कर सकते हो इतों ही इस तो बाद है तुम R1 R2 भी इंटरचेंज कर लो अगर आप कर दिए क्यों करनी है सम च देखांगे R2 R1 R1 R2 एक ही करके समझो काफ़ी लेंथी कंसैप्ट है शायद एक वीडियो का ना पूरा आए मैं समझा देना कोशिश करांगे सम करने की भी नहीं तो नैक्सट वीडियो तो हम सम ही पावांगे। इनू आप बोलते हैं एलीमेंट्री ट्रांसमिशन। अगर आप किसी भी 2 रो नूं इंटरचेंज कर दी है आपस में किसी भी 2 रो मैट्रिक्स की ठीक है तो मैट्रिक्स से कोई फर्क नहीं पैंदा वैसे किसी भी 2 मैट्रिक्स रोवां नूं इंटरचेंज कर दी तो उन्होंने आप बोल दें एलीमेंट्री ट्रांसमिशन। ठीक है या बोल दो यू कैन इंटरचेंज एनी ऑफ 2 रोज इन ए मैट्रिक्स पहली टाइप एलीमेंट्री ट्रांसमिशन की। उदा ही अगर आप
कॉलम नू किसी भी दो कॉलम नू इंटरचेंज कर दिए है ना, आप दो रो भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी दो रो तो कोई भी दो कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं, दोनों मिक्स नहीं करने। अगर रो इंटरचेंज करिए तो आप रो ही इंटरचेंज करनी है, उदा आप कॉलम भी इंटरचेंज कर सकते हैं है ना। मैं तुहानूं दस देना कॉलम इंटरचेंज किद्दां होणगे। आप कॉलम भी इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई भी दो कॉलम, जिद्दां कॉलम आ गया फर्स्ट सैकेंड थर्ड। अगर आप कॉलम इंटरचेंज करिए तो अच्छा एलीमेंटरी ट्रांसमिशन दो तरह की होंगी, एक रो एलीमेंटरी ट्रांसमिशन होंगी है, एक की होंगी है कॉलम एलीमेंटरी ट्रांसमिशन। ध्यान ना सुनना, एलीमेंटरी ट्रांसमिशन दो तरह की होंगी, एक रो एलीमेंटरी ट्रांसमिशन ते कॉलम एलीमेंटरी ट्रांसमिशन। फिर रो एलीमेंटरी के अगे तीन तरह की ट्रांसमिशन होंगी है, कॉलम एलीमेंटरी कॉलम एलीमेंटरी ट्रांसमिशन भी तीन तरह की होंगी है ना। फिर तो सुनना, एलीमेंटरी ट्रांसमिशन से दो कंसैप्ट आने, एक आने रो एलीमेंटरी ट्रांसमिशन, एक आने कॉलम एलीमेंटरी ट्रांसमिशन। तीन तीन चीज़ा रो एलीमेंटरी चाहिए तो तीन ही कॉलम एलीमेंटरी ताकि कहना एलीमेंटरी ट्रांसमिशन टोटल कितनी होंगी है 6। ठीक है, उदा आप अगर ऊपर ऊपर देखिए तो एलीमेंटरी ट्रांसमिशन दो तरह, एक रो एलीमेंटरी ट्रांसमिशन कॉलम एलीमेंटरी ट्रांसमिशन। अगर रो एलीमेंटरी ट्रांसमिशन है तो फिर रोआ इंटरचेंज करो, अगर तुम कॉलम एलीमेंटरी ट्रांसमिशन है तो फिर लगानी है तो फिर कॉलम्स इंटरचेंज करो। जिदा आप करा दसा डिटेल तेन, कोई भी दो कॉलम इंटरचेंज कर दे, फिर हम लिखोगे कितना कोई भी दो, इनू आप बोल दें C1 C2 कर दो, यदा मतलब पहले की जगह दूजा कॉलम तो दूजे की जगह पहला। तो अं की कहेंगे, अं मैट्रिक्स से की लगाती है कॉलम एलीमेंटरी ट्रांसमिशन। आप मैट्रिक्स से की लगाती है कॉलम जी पहली ही होगी रो एलीमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन। जहाँ जरूरत के हिसाब से देखा कि जरूरत होगी तुम सम के अकॉर्डिंग सू जिदा जरूरत होगी आप उदा ही एलीमेंटरी ट्रांसमिशन चेंज करते हैं। जिदा C1 इंटरचेंज विद C3 1, अच्छा C1 C3, चलो यह रहने दो, चलो कल को लिख लिया हूँ 3 - 4 5 2 3 2 1 2 7। तुम इदा भी कर सकते हो, C2 C3 भी कर सकते हो, जरूरी थोड़ा पहले चेंज करनी है, जड़िया मर्जी दो इतने सारी है। पहला स्टेप है यह कितना आ गया 1 2 7 3 - 4 5 2 3 ते 2। जिदा आप ऑपरेशन पढ़ते हैं ना नंबर्स के प्लस माइनस मल्टीप्लाई, उदा ही ऑपरेशन होंगे है मैट्रिक्स के एलीमेंटरी ट्रांसमिशन। ऑपरेशन ही ट्रांसमिशन है। आ गए कॉलम एलीमेंटरी तो जी पहला सी होगी रो एलीमेंटरी ट्रांसमिशन। तीन तरह के नाल है, तीन रो चाहिए तो तीन कॉलम चाहिए। पहली की सी आप कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दिए तो आप बोल दें एलीमेंटरी ट्रांसमिशन। जे आप रो वाली लावे तो आप रो एलीमेंटरी कह देंगे रो एलीमेंटरी ट्रांसमिशन, जो कॉलम वाली लावे तो की कहेंगे कॉलम एलीमेंटरी ट्रांसमिशन। पहली टाइप सी। दूजी टाइप की होंगी है, मैं इतने लिखी जाना अभी, चलो मैं रब कर देना। दूजी की किसी पहली मैं फिर लिख देना की किसी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिहदे पहला क्या यही पहली आप पढ़ ली है एनी टू रोज और कॉलम बी इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज रहता है। इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम, ऐसे हम आप पढ़िए है ना कॉलम स्पेलिंग देख लेना। दूसरा की कहता है कि आप किसी भी रो दे विच किसी भी दूजी रो नूं की कर सकते हैं, सॉरी तीसरी है आप किसी भी रो नूं किसी भी स्केल नाल मल्टीप्लाई कर दिए नॉन जीरो स्केल दे नाल, उन्होंने आप की बोल दें एलीमेंटरी ट्रांसमिशन, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो किसी सिंगल रो नूं
ਐਨੀ रो ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਲ रो ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਲ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਵਿਦ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਸਕੇਲਰ ਇੱਕ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ 6 ਹੁੰਦੀਆਂ, 3 रो ਚ ਲੱਗਣੀਆਂ ਤੇ 3 ਕਾਲਮ ਚ। ਜਿੱਦਾਂ 2 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ रो ਚ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਚ, ਇੱਕ ਚ 2 ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ। फिर ਉਹਦੇ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रोज और मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो और एनी कॉलम विद नॉन जीरो स्केलर। मतलब अगर तुहानू ये मैट्रिक्स हैगी है 1 2 4 3 2 -1 2 5 3 तुहानू मैट्रिक्स आ गई। अगर असी किसी भी रो नू किसी भी स्केलर नाल नॉन जीरो स्केलर नाल की कर दीए मल्टीप्लाई, तो उन्होंने भी आप बोल देने एलीमेंटरी ट्रांसमिशन। एलीमेंटरी ट्रांसमिशन एक होर तरह की होंगी है, सैकेंड टाइप की होंगी है भी आप किसी भी या एलीमेंटरी ट्रांसमिशन बोल रहे हैं, मैं बोलिया एलीमेंटरी ऑपरेशन बोल दो भी आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम नू किसी भी नॉन जीरो नंबर नाल या स्केलर नाल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रो दे विच किदां लगणगीਆਂ जिद्दां ਇਹ मैट्रिक्स है, ਤੁਸੀਂ इदां लिख सकते हो 2r2 ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1 2 4 2 करो 6 4 -2 2 5 3। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ कहता ਆਪਾਂ मैट्रिक्स ਤੇ ਕੀ ਲਾਤੀ एलीमेंटरी ट्रांसमिशन। देखो हैगा की है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ बेसिकली मेन चीज की है भी इनवर्स करना। सम की आने उन्हें कहना यूजिंग एलीमेंटरी ट्रांसमिशन फाइंड इनवर्स, यूजिंग एलीमेंटरी ट्रांसमिशन फाइंड इनवर्स। तो इनवर्स से आप बाद कटांगे, पहले सानू यह पता होना चाहिए भी एलीमेंटरी ट्रांसमिशन होंगी किहड़ियां। तो मैं तुहानू कहा एलीमेंटरी ट्रांसमिशन होंगी 6 तरह दी, 3 लगदियां रो च ते 3 लगदियां कॉलम च। जिन्हां विचों पहली की यही आप कोई भी 2 रो इंटरचेंज कर दी, तो उन्होंने आप 2 रो या कोई भी 2 कॉलम इंटरचेंज कर दी आपस में, मिक्स नहीं है रो कॉलम ना रो ना नहीं, कोई भी 2 रो जिद्दां आपां पढ़िया या कोई भी 2 कॉलम इंटरचेंज कर दी तो उन्होंने आप की बोल देंगे एलीमेंटरी ट्रांसमिशन। दूजी एलीमेंटरी ट्रांसमिशन किहनूं कहंदे आ, दूजी टाइप किहड़ी हुंदी है आप किसी भी रो नूं किसी भी स्केलर नाल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 ना करना 2 ना कर लो 3 4 -1 -2 नॉन जीरो होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नैगेटिव है। किसी भी रो नूं किद्दां की करना कि वो सम च देखांगे। सानू की होना सम दे विच जदों आपां इनवर्स करना है सानू आपे देखना पेगा भी सानू किहड़ी रो नाल इंटरचेंज करना है, किहड़ी रो नूं किहड़े स्केलर नाल मल्टीप्लाई करना है, की करना की नहीं करना सम च देखांगे। पहले कल्ला कल्ला पढ़ो, फिर जो आप सम च अप्लाई करांगे फिर वो तुहानूं ज़्यादा क्लीयर होना। इहनूं मिक्स ना करियो, इदां कल्ला कल्ला पढ़ियो कि इंटरचेंजिंग ऑफ मतलब एलीमेंटरी ट्रांसमिशन की होंदी है भी आप 2 रो नूं इंटरचेंज कर दिए 2 कॉलम नूं इंटरचेंज कर दिए आपस एक टाइप हो गई एलीमेंटरी ट्रांसमिशन। दूजा किसी भी स्केल रो नूं किसी भी नॉन जीरो स्केलर नाल मल्टीप्लाई कर दिए, किसी भी नॉन जीरो स्केलर नाल मल्टीप्लाई कर दिए, एक है होगी। जां एलीमेंटरी ट्रांसमिशन होर किहड़ा होगी जिद्दां मान लो कई बार सानूं सम दे विच जरूरत पै जांदी है भी किसी भी रो नूं किसी भी स्केलर नाल मल्टीप्लाई करिए तो उन्होंने पहला आपां लिखांगे। फिर इदां जिद्दां कुछ भी लिख लो, इनू 3r1 ਇਹਦਾ मतलब 3 कर दिए 6 12 3 2 -1 एनू आप बोलने हैं एलीमेंटरी ट्रांसमिशन। मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो और एनी कॉलम विद नॉन जीरो स्केल। अच्छा रो होगी उदा ही तुम कॉलम भी कर सकते हो। सम दे विच देखांगे जो सानू जिहड़ी चीज़ की लोड़ होगी आप इन्हां एलीमेंटरी ट्रांसमिशन लगा के आप सम दे विच की निकालना है इनवर्स। अगे जाके आने सम उत्थे सानू उन्हें कहना इनवर्स करो एलीमेंटरी ट्रांसमिशन लगा के, फिर तुहानूं ज़्यादा क्लीयर होगा भी आप कल्ली कल्ली क्यों पढ़ी है। उदा तुसीं कॉलम च भी लगा सकते हो, किसी भी कॉलम नूं किसी नाल भी मल्टीप्लाई कर दो, वो जब आप सम करांगे सानूं सम च ज़्यादा क्लीयर होएगा। पर कल्ला कल्ला जरूर पढ़ियो 2 6 4 2 2 5 4 -1 लिखना जरूर है किया गया 2c1 मतलब c1 2 नाल मल्टीप्लाई करता। किसी भी रो नूं या किसी भी कॉलम नूं किसी भी स्केलर नाल मल्टीप्लाई कर दिए तो वह भी आपां की कहने आ एलीमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन। जिहड़ी भी होएगी r1 ना करना r1 ना कर दो, r2 ना करना r2 ना कर दो, r3 ना करना जे रो 3 ना करना है तो रो 3 ना भी कर सकते हो, चाहे पॉजिटिव ना चाहे नैगेटिव ना, जीरो ना नहीं नॉन जीरो नहीं कभी होंदा। उदा ही कॉलम से ऑपरेशन लगा दिए, अगर यही ऑपरेशन कॉलम से लगा दिए भी किसी भी रो कॉलम किसी भी स्केलर नाल मल्टीप्लाई कर दी तो उन्होंने आपां की बोल देने
कॉलम एलीमेंट्री ट्रांसमिशन। अगर तुम यह ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन वाला स्केलर वाला रो ते लगाओगे तो आप रो एलीमेंट्री ट्रांसमिशन कहते हैं। अगर तुम उन्होंने कॉलम से कहोगे तो की लगना है कॉलम एलीमेंट्री ट्रांसमिशन। इक्को सम तुम इकट्ठे दोनों नहीं लगाने, रो वाला वखरा चलना, कॉलम वाला वखरा। यह होंदा है दूजी टाइप मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो और एनी कॉलम विद नॉन जीरो स्केलर। तुम कॉलम में करना है तो इदा भी कर सकते हो 2C2 या किसी ना भी कर लो -1। अच्छा मैं तुम बार बार एको चीज बोलने कि कदों करना सानू सम दे विच पता लगना है। यह आप सिर्फ देखने भी एलीमेंट्री ट्रांसमिशन होंगी है कि टोटल 6 3 रो च 3 कॉलम च। आप ज़्यादातर जो सम करांगे तो सम आप रो एलीमेंट्री ही लगानी है। दूजी एलीमेंट्री ट्रांसमिशन है 3 तरह की होंगी, 3 नहीं 6, 3 रो च 3 कॉलम च। हुण इस तो बाद तुसीं देखना तीजी टाइप की है, यह ज़्यादा यूज होनी है। तीजी टाइप की कहती है द एडिशन ऑफ एलीमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम। यह बड़ी वड्डी की है, मैं तुहानूं सीधा समझा ही दिना। तीसरी टाइप की है, तुसीं बुक होएगी तुहाडी बुक च देखना भी मान लो तुहाडे कोल मैट्रिक्स है ए, फिर तो लिख देना 1 2 3 है ना, 2 ले लो 2 1 3 3 4 1 1 5 -1 मैट्रिक्स है। एलिमेंट्री ट्रांसमिशन थर्ड टाइप की है, काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट होगी, मैं तुहानूं सीधा शॉर्टकट के समझा देना, सुन लेना, ज़्यादातर लगनी भी यही है। तो आप पहली की पढ़ी आप कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं। दूजी आप की पढ़ी ही आप किसी भी रो नू किसी भी स्केलर नाल मल्टीप्लाई कर दिए तो उन्होंने भी आप की बोलते हैं एलीमेंट्री ऑपरेशन, या किसी भी कॉलम नू किसी भी स्केलर नाल मल्टीप्लाई कर दिए नॉन जीरो नाल तो उन्होंने आप की बोल दें एलीमेंट्री ट्रांसमिशन। तीजी एलीमेंट्री ट्रांसमिशन की कहती है, ध्यान नाल सुनना, आप किसी भी कोई भी 2 रो, कोई भी 2 या 2 तो ज़्यादा रोज, 2 भी ले सकते हो 2 तो ज़्यादा भी ले सकते हो रोज, वो सम के अकॉर्डिंग लिखांगे। कोई भी 2 रो या 2 तो ज़्यादा रोज नू आपस में आप प्लस कर सकते हैं। ध्यान नाल सुनना, इतने मैं इको चीज 2-3 चीज़ां हैं, फाइनली फिर आप एक लास्ट चीज़ से पुजांगे। कोई भी 2 रो जिदा कोई भी 2 रो आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हो तो माइनस भी करना। भी की होंगी है थर्ड टाइप होंगी है, मैं लिखी नहीं, थर्ड टाइप होंगी एलीमेंट्री ट्रांसमिशन की कहते हैं भी आप कोई भी 2 रो या कोई भी 2 रो आपस में प्लस भी कर सकते हैं तो माइनस भी करिए, उन्होंने आप की बोल दें एलीमेंट्री ट्रांसमिशन। मतलब रोज के जो ऑपरेशन लगाने है ना, मैट्रिक्स के जो अंदर ऑपरेशन लगाते उन्होंने आप कहने एलीमेंट्री ट्रांसमिशन। इन शॉर्ट मैं तुहानूं समझाना, मैट्रिक्स के जो रोज के कॉलम के आपस में जो ऑपरेशन लगते हैं उन्होंने आप की बोल दें एलीमेंट्री ट्रांसमिशन, एलीमेंट्री ऑपरेशन या एलीमेंट्री ट्रांसमिशन। जिदा आपस में रोआं प्लस कर लिए है ना, 2 रोआं आपस में प्लस कर लो चाहे माइनस कर दो, तो इनू भी आप बोल देनी एलीमेंट्री ट्रांसमिशन। 2 अच्छा R1 + R2, अच्छा R1 + R3 करता, 2 रोआं प्लस से करता, एक है भी एलीमेंट्री ट्रांसमिशन। हुण इनू लिखोगे किदा, लास्ट वाली बोलूँगा, एक बार सुन लो ना। एलीमेंट्री ट्रांसमिशन की होंगी है मैट्रिक्स के जो रोज ते कॉलम होंगे हैं, इन्हां विच आपस च अंदर जो ऑपरेशन लगते हैं उन्होंने आप की बोल देनी एलीमेंट्री ट्रांसमिशन। ये 3 तरह के होंगे, देखो तुम पिछे देखो सारे आप इदा ही किए, पहला किया मैट्रिक्स के जिन्नियां रोज होणगियां उन्होंने आपस में इंटरचेंज कर दो तो होगी एलीमेंट्री ट्रांसमिशन। मैट्रिक्स के अंदर जिन्नियां भी रोज होणगियां उन्होंने आप किसी भी स्केलर नाल मल्टीप्लाई कर दिए, या कोई जिन्ने भी कॉलम होणगे उन्होंने आप किसी भी स्केलर नाल मल्टीप्लाई कर दिए, वो की हो गई एलीमेंट्री ट्रांसमिशन। मतलब तीजी ए तुहाडे कोल मैट्रिक्स हैगी है, ये जिन्नियां भी रोज हैगियां, जिन्नियां भी रोज हैगियां या जिन्ने भी कॉलम्स हैगे इन्होंने आपस में प्लस माइनस कर दिए तो उन्होंने भी आप की बोल दें एलीमेंट्री ट्रांसमिशन। जिदा R1 + R3, अच्छा R1 + R3 करते दिता, पता करके लिखिए किदा हुंदा की है मैट्रिक्स के जो आप एलीमेंट्री ट्रांसमिशन लगाने हैं, इनू R1 च लिखा कि R3 च लिखा, कितने लिखा R1 + R3, केड़ी रो च लिखना है या केड़ी रो चेंज होनी है, या इतने लिख लिया करो जी अपने पहला होए R1 पहला लिखा ना,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ R1 plus R3 R1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ R1 plus R3 ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ R1 plus R3 ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ R1 changes to R1 plus R3 ਇਹ ਤੀਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪ ਸੀਗੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਭਲਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਲਮਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋ ਨੂੰ ਸਕੇਲਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਰੋ ਆਪਸ 'ਚ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਲਮ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਸਕੇਲਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ R1 plus R3 ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ R1 plus R3 ਅੱਛਾ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ R1 plus R3 ਕਰੋ R1 plus R3 ਅੱਛਾ ਪਲੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਰੋਜ਼ R1 plus R3 ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹ R1 ਹੈ ਇਹ R3 ਅੱਛਾ ਪਲੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ 3 ਫਿਰ ਦੂਜੇ 'ਚ ਦੂਜਾ 1 plus 5 6 ਤੀਜਾ R2 ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਤੇ R3 ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ R1 plus R3 ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋ 1 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਰੋ 1 ਚੇਂਜਸ ਟੂ ਐਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੇਂਜਸ ਟੂ ਰੋ 1 ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਬਣ ਗਈ R1 plus R3 ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਣੇ ਆ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਸਕੇਲਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਲਮਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ R1 minus R2 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ R1 minus R2 ਮਤਲਬ R1 ਚ R2 ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀਏ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਚ R1 minus R2 ਕਰੋ ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ R1 ਚੋਂ R2 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ R1 ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮਾਈਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ R1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2 R2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3 2 minus 3 minus 1 1 minus 4 नहीं तो ऐसे लिख लो 1 minus 4 minus 3 3 minus 1 2 सिर्फ R1 जी पहला लिखी है वही चेंज होनी है बाकी किसी ने नहीं चेंज होना इदा ही 1 5 3 तुम इदा भी कर सकते हो R2 minus R3 जरूरी थोड़ा पहले ही करनी है इदा भी कर सकते हो इदा यह तीसरी टाइप है पर पूरी नहीं की तीसरी टाइप ध्यान सुनना पूरी नहीं की तीसरी टाइप थर्ड टाइप की है थर्ड टाइप ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਰੋ ਆਪਸ ਚ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਰੋ ਆਪਸ ਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਰੋਜ਼ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥਰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਈਏ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੋ ਰੋਜ਼ कोई भी दो रो आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं है ना इन्हों भी ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਰੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੇਲਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 1 ਲੈ ਲੈਣਾ 1 ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ R1 माइनस कहता कर दो R2 माइनस 3R1 अगे पाया कहते ना एक्चुअल क्या है कि है थर्ड टाइप ही है
पहला मैं एक एक करके समझाया आप कोई भी दो रो आपस च प्लस भी कर सकते हैं तो माइनस वो भी ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। एक होर चीज़ आ जाती है भी जरूरी नहीं तुम दो रो आपस च प्लस माइनस कर सकते हो, तुम कोई भी दो रो किसी स्केलर नाल, चाहे इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो, किसी भी स्केलर नाल मल्टीप्लाई करके भी प्लस माइनस कर सकते हो। ऐदा नहीं भी कला सीधे प्लस माइनस होंगे, जो तुहानूं जरूरत हैगी है लोड़ हैगी है समझ देखांगे ज़्यादा क्लीयर होना है। तुसीं ए दो मैट्रिक्स दियां कोई भी दो रो प्लस माइनस से कर ही सकते हो, किसी स्केलर नाल मल्टीप्लाई करके भी प्लस माइनस कर सकते हो, चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस, मतलब यह ऑपरेशन भी नाल लगा सकते हो, दोवां दा इकट्ठा ही हो गया भी कोई भी दो रो आपस च दो रोज आपस च प्लस माइनस कर सकते हो, उन्होंने भी एलीमेंट्री ट्रांसमिशन कहते हैं, या दो रो नूं किसी स्केलर नाल मल्टीप्लाई करके भी प्लस माइनस जिद्दां करता मैं कितना आ गया। अच्छा किहड़ी चेंज होएगी हुण R2 चेंज होनी है, ऑपरेशन कितने लगे जिहड़ी पहली होएगी उन्हें चेंज होना है। जिदा R2 माइनस 3R1 करता है लिखना कितने है, जिहड़ी है पहला लिखी है वो चेंज होनी है, बाकी सारियां उदा ही रहना। तो जो आप ऑपरेशन लगाया रो 2 तो रो 2 सारी लगनी है, जिदा 1 1 3 पहला एज इट इज है ना। हुण करो R2 लगाओ ऑपरेशन, R2 मतलब ए चेंज करके इदा लिख लिया करो, तुहानूं पहला भी कहा जे नहीं कई बुक्स इदा भी लिखदियां R2 चेंजिस टू है ना, इदा लिख लिया R2 चेंजिस टू, पर यह ना लिखियो अंडरस्टूड हुंदा है ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ R2 ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੀ R2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ R2 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, R2 ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ R2 ਮਾਈਨਸ 3R1, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਦੇਖੋ R2 ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3 ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਫ ਚ 3 ਮਾਈਨਸ 3R1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 ਤੇ 3 ਮਾਈਨਸ 3 ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ 0। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰੋ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ 4 ਨਹੀਂ ਆਣਾ, 4 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ, 4 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆਣਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ लगाओ कितना आ गया 4 माइनस R2 कितना है 4 है ना, 4 माइनस 3 R1 कितना है 1, 4 माइनस 3 कितना आ गया 1, फिर अगे 1 माइनस 3 R2 कितना है 1 माइनस 3 R1 कितना है 3, कितना आ गया 1 माइनस 9 माइनस 8, तो थर्ड वाला चेंज होना ही ठीक है। इनू आप बोल देंगे एलीमेंटरी ट्रांसमिशन। उदा ही अगर यह चीज़ आप कॉलम से भी लगा सकते हैं, ठीक है। कॉलम वाला देखियो कोई भी दो कॉलम आपस च प्लस माइनस कर सकते हैं, या कोई भी दो कॉलम किसी स्केलर नाल मल्टीप्लाई करके भी प्लस माइनस कर सकते हैं। जिदा लिखा सम च देखा सम के सानू जरूरत पेगी उदा ही सानू अपने वालों ऑपरेशन चेक करने पैने भी किहड़ा ऑपरेशन लगाना किहड़ा नहीं लगाना। तो यह फिलहाल कला कला देखना इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रो, फिर तो मैं देखने लगा दोबारा सुन लो। पहला की किया आप तीजी टाइप की है, यही समझ ज़्यादा यूज होनी है। आप कोई भी दो रो आपस में प्लस माइनस कर देंगे, एक तो है इनू ही होर ज़्यादा अगे बढ़ा के पूरा कोई भी दो रो प्लस माइनस से कर ही सकते हैं, किसी स्केलर ना मल्टीप्लाई करके भी प्लस माइनस कर दिए तो उन्होंने भी आप बोल देने रो एलीमेंटरी ट्रांसमिशन। पहली गल दूजा जो आप ऑपरेशन लगाना इदा है ना जिदा लिखता मैं, फिर ये करना कि पहली गल कितने लगाई है जेड़ा तुसीं पहले तो लिखे दा है, अगर R2 पहला लिखा है इसका मतलब R2 है जो पुराना है यह चेंज होकर की बन जाएगा। मैं कहना इदा लिखा R2 एरो का मतलब चेंजिस टू, R2 को चेंज करके यह लिख दो R2 माइनस 3R1, पर नॉर्मली बुक ने यह नहीं लिखा होना है ना, जो तुम लिखना है तो लिख लो यही लिखा है R2 माइनस 3R1, क्योंकि उन्होंने पहले ही दस देना मैं तुहानूं दस दिया भी यह जो पहला होएगा जी भी ऑपरेशन के पहली रो लिखी होगी वो रो की जगह तुसीं यह ऑपरेशन जिदा R2 है ना 3 वो जगह यह ऑपरेशन लगाना। जिदा मान लो सानूं यह आ जाता R3 माइनस एक ऑपरेशन लगा लो R3 माइनस 2R1, R3 माइनस 2R1। हुण यह किद्दां करोगे, यदा मतलब अगर यह होंदा इत्थों ही सीधा ही है, यदा मतलब किहड़ी रो चेंज होनी है R3, बाकी तो कोई नहीं ना होनी। ऑपरेशन कित्थे लगन दिया है, ऑपरेशन ट्रांसमिशन कित्थे लगी दी है R3 से जो पहला है R3 से, यदा मतलब जो पहलियां दो हो गई उन्होंने एज इट इज ही लिख देना, एज इट इज ही भी एज इट इज ही इतों यह बनाने। फिर दूजा
ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ R3 माइनस 2R1 करो R3 कितना ही इतने कितना ही 2 2 माइनस 2R1 कितना गया 1 एंड 2 माइनस 2 कितना आ गया 0 R3 कितना दूजा एड़ा भी दूजा एड़ा भी दूजा अब पूरी चेंज होनी है R3 पहले ना पहला करो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ बस 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़े 10th ਚ x y ਲੈ ਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ 5 माइनस 2 टाइम्स 1 5 माइनस 2 कितना आ गया 3 ए माइनस 1 ही इतने माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स 3 ए कितना आ गया माइनस 1 माइनस 6 कितना आ गया माइनस 7 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਲਮ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ पर आप ज़्यादातर सम रो एलीमेंट्री नाल ही करने हैं कॉलम एलीमेंट्री बहुत घट सम गए है तुम इदा ही कॉलम भी प्लस माइनस कर सकते हो जिदा है C2 प्लस C1 अच्छा C2 प्लस C1 मतलब कॉलम 2 च कॉलम 1 प्लस कर दो कॉलम 2 च कॉलम 1 प्लस कर दो तो यदा मतलब कॉलम 2 चेंज होना है करो प्लस पहले से पहला 2 फिर जो कॉलम प्लस करने फिर पहले से पहला दूजे से दूजा 5 से 2 7 3 1 ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋ ਕੋਲਮ ਕਿਸੇ ਸਕੇਲਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ C3 - 3C1 ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ C1 C2 C3 ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਸਮ ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ C3 ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਚ C3 - C1 ਕਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਕਾਲਮ 3 ਤੇ बाकी दो एज इट इज ही ते ए कॉलम 3 की जगह उन्हें ऑपरेशन लगाना करो C3 - C1 C3 - 1 अच्छा 3 - 3 0 C3 कितना है 1 दूजा 1 एनु 3 ना मल्टीप्लाई करना ना 1 - 9 कितना आ गया -8 h कितना -1 -3 टाइम्स C1 कितना तीजा 2 3 दूनी 6 माइनस ए ध्यान नाल देखना ऑपरेशन लगाने भी औखी हो जाती है C3 - 3 C1 मतलब C3 कितना है 3 क्या पहला लिखता C3 कितना है 3 या तो इतना लिख लिया करो C3 - 3 C1 C3 कितना है 3 माइनस C3 कितना पहला 3 माइनस 3 C1 कितना गया 1 कितना आ गया 0 C3 दूसरा कितना है 1 माइनस इधर कितना है ना इतना भी लिख के कर लो भावें ते एना ए आपां की पढ़े है एलीमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है जी एलीमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 6 तरह की होंगी 3 रो च 3 कॉलम च ਜਿਹੜੀਆਂ 3 रो च होंगे आप कहने रो एलीमेंट्री ट्रांसमिशन ਜਿਹੜੀਆਂ 3 कॉलम च होंगे आप बोल देंगे कॉलम एलीमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है जी हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं चलो ਤੁਹਾਨੂੰ सम ਤੇ वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है सम ਤੇ नहीं करांदा पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक होर बेसिक चीज़ करवाना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ई एक्सरसाइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ आना है मैं हो सकता कल 2 ही अपलोड करदा अपनी वीडियोस नहीं तो कल शाम तक दूजी भी अपलोड हो जाएगी सम भी हो जाएंगे नाल दूजा की कहते हैं इनवर्स हुण आपां मेन आ जाइए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इनवर्स की हुंदा है मैट्रिक्स का इनवर्स 2 हुंदे है इनवर्स आपां दो पढ़ने इनवर्स एक हुंदा एडिशन च इनवर्स एक हुंदा मल्टीप्लिकेशन च इनवर्स जिद्दां आपां छोटियां क्लासां च पढ़िया है ना 2 का इनवर्स कितना होएगा 2 का इनवर्स जिद्दां आपां नॉर्मली ज़्यादातर की बोलते 1/2 पर नहीं इदां नहीं हुंदा हाँ ठीक है 2 का इनवर्स जो हुण आपां हुण वड्डी क्लास ते +2 च जो भी इनवर्स पूछा है नंबर मैट्रिक्स का नंबर की गल करने वैसे जो 10th तक पढ़ेंगे +1 तक 2 का इनवर्स कड्डो फिर ऐ नहीं फटाफट बोल देना 1/2 आपां उन्होंने यह पूछना किहड़ा इनवर्स एडिटिव इनवर्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर वो एडिटिव इनवर्स कहता है तुहाडे देखियो जी ऑब्जेक्टिव टाइप बुक होगी तुहाडे को JEE दी शायद लिखे दा होना टॉपिक अगर 2 का नहीं कहेगा इनवर्स कड्डो उन्हें यह नहीं कहेगा इनवर्स पहला देखियो भी किहड़ा इनवर्स एडिटिव इनवर्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर 2 का एडिटिव इनवर्स है तो कितना आना है -2 प्लस का इनवर्स कितना होता है -2 अगर वो कहता 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कड्डो तो फिर की होंदा है एक होंदा एडिटिव इनवर्स है ना
एडिटिव इनवर्स, एक हुंदा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर उन्हें कुछ नहीं किया, सीधे कहता इनवर्स कटो, अगर कुछ नहीं किया इनवर्स कटो, फिर अंडरस्टूड होंदा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही 1/2। ताही आपां की करने आ छोटे क्लास कहते 2 ਦਾ इनवर्स करो, 2 ਦਾ इनवर्स कितना ਹੁੰਦਾ है 1/2। ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ। एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स का की होंदा है, ऐसे नंबरां दा आ गया ना, ऐसे नंबरां दा आ गया ना एडिटिव इनवर्स ते मल्टीप्लिकेट। अगर तुहानूं कोई मैट्रिक्स दी है ए, कुछ भी दी है, ਉਹਦਾ एडिटिव इनवर्स कितना होएगा -a। एडिटिव इनवर्स कितना होएगा -a। ठीक है जी, ये वैसे प्रॉपर्टी होंदी है ग्रुप रिंग फील्ड च होंदी है। चलो एडिटिव इनवर्स कितना होएगा -a ते मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a इनवर्स इदा लिखने ਆਪਾਂ a इनवर्स। जिदा ਆਪਾਂ x ਦਾ इनवर्स किदा लिख दिंदे x ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ 1/x। ਹੁੰਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਇਹ ਚ ਉਹੀ ਹੈ 1/a। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ a ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਨਵਰਸ ਮਤਲਬ 1/a, ਪਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ a ਇਨਵਰਸ a ਦੀ ਪਾਵਰ -1। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, अगर उन्हें कुछ नहीं किया सीधा ही क्या इनवर्स कटो, ਇਹਦਾ मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स नहीं। अगर उन्हें सीधा क्या इनवर्स कटो, मतलब ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਿਓ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਨਵਰਸ मतलब 2 ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ 1/2 ਦਾ ਇਨਵਰਸ 1/2 ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1, ਹੈ ਨਾ। ਮਲਟੀਪਲਿਕੇਟ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/a ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ 1/a a ਇਨਵਰਸ ਹੀ। ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ a ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਇਡੈਂਟੀ ਦੀ ਇਨਵਰਸ ਦੀ। ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ a ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ a b ਮੰਨ ਲਓ a ਤੇ b ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਆਇਡੈਂਟੀ ਆਣ ਡਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ b ਕੀ ਹੋਏਗਾ a ਇਨਵਰਸ। b ਕੀ ਹੋਏਗਾ a ਇਨਵਰਸ। मतलब ਇਨਵਰਸ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਵਰਸ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜੇ ਆਇਡੈਂਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਜਦੋਂ ਲੱਗਣਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ मतलब ਜਿੱਦਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ 1/, ਆਪਾਂ 1/, ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ a ਇਨਵਰਸ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਨਵਰਸ मतलब ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਜੇ i। ਇਹਦਾ मतलब b ਕੀ ਹੋਏਗਾ इनवर्स ऑफ a, that is b ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ b ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ a ਇਨਵਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, a ਇਨਵਰਸ ਆਫ a ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਤੇ ਐਡੀਟਿਵ। ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹਾਊ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਇਨਵਰਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਮ ਕੀ ਆਣਗੇ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ 2-3 ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਕੀ ਹੈ उन्होंने स्टेटमेंट की पाई होनी है फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, फाइंड द इनवर्स अंडरस्टूड है मल्टीप्लिकेटिव भी है ना। जो तुम कहे जो भी उन्हें इनवर्स किया है इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही निकालना। सम किदा नहीं आएंगे फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मैं कोशिश करना वीडियो अपलोड करने की, कल तक तुहानूं मिल जाएगी 2 वीडियोज़ पिक करना ट्राई। थैंक यू बेटा।